In this video, this example explains how to calculate the tax liability of a company. So both the provisions, normal provisions and MAT provisions are explained with the help of this example. So let's discuss the question first and then we will see how this will be solved. So there is a company X Limited which is engaged in the business of manufacturing of garments. तो यहाँ पर सबसे पहले जो अमाउंट गिवन है दैट इज़ दी सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स डोमेस्टिक सेल. तो अमाउंट इज़ 22,23,900. सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड एक्सपोर्ट सेल जो है दैट इज़ 5,76,100. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व दैट इज़ 2 lakh. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व इज़ 1,50,000. तो टोटल जो है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स लिमिटेड का, so that is 31,50,000. Now on the debit side the expenses are given. The first expense is the depreciation. Normal depreciation is given and the amount is 6,16,000. Then there is another figure of depreciation because of revaluation and that depreciation is 2,70,000. Then salary and wages are given, fair 2,10,000. Then fringe benefit tax is 10,000. Income tax is given 3,50,000. Outstanding customs duty, the custom duty which has not been paid yet, the amount is 17,500. Then proposed dividend is 60,000. Consultation fees paid to tax expert is 21,000. Then there are certain other expenses amounting to rupees 1,39,000. And the total net profit comes out to be 14,56,500. Further, for taxation purposes, it says that company can claim a deduction under section ITB which is 30% of 14,56,500 is the net profit, so 13% of the net profit. Then second is the deduction that can be claimed is of depreciation under section 32, that is of rupees 5,36,000. फर्दर जो है कंपनी ने जो है कुछ लॉसेस और अलाउंसेस हैं जो कि ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं. सो दैट इज़ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर टैक्सेशन पर्पज इट इज़ 14,80,000 and for accounting purpose it is 4 lakh. Unabsorbed depreciation is nil for taxation purpose and for accounting purpose it is 70,000. We have to compute the net income and tax liability of X Limited for this particular assessment year, assuming that X Limited has a long-term capital gain of 60,000 under section 50D which is not credited in P&L account. P&L account में show नहीं किया हुआ है, but we know that there is another income of long-term capital gain and the amount is 60,000. तो अब इस पे हमको calculate करना है कि what will be the tax liability of the company. So first is that we calculate the tax liability under normal provisions. The normal provisions calculate करने के लिए हमको जो figure चाहिए है जिस पे कि हम tax rate applicable apply करते हैं, so that is the net income, जो net taxable income आती है कंपनी की. तो net taxable income निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो अमाउंट चाहिए that is business income. तो business income जो है, बिजनेस इनकम या और भी जितने भी हेड्स हैं कंपनी के, एक बिजनेस हेड हो गया, देन कैपिटल गेन्स हो गए, देन हाउस प्रॉपर्टी अदर. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ बिजनेस इनकम दे रखी है और एक कैपिटल गेन्स दे रखे हैं, दो ही इनकम है. तो ग्रॉस इनकम निकालने के लिए इन दोनों हेड्स की इनकम को ऐड करेंगे. तो कैपिटल गेन हमको मालूम है दैट इज़ 60,000. बिजनेस इनकम इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. तो बिजनेस इनकम देखिए, विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट गिवन है 14,50,000. सो नेट प्रॉफिट एज पर P&L account is 14,56,000. तो क्योंकि हमने देखा था कि
certain incomes like withdrawal from reserves, revaluation reserves, then there are certain expenses जो कि unnecessary show किए हुए हैं, they are not the expense of the company or the income of the company. So we need to make adjustments in the net profit given as in the P&L account to arrive at the real business income as per the taxation point of view. कई बार हम जो है जो P&L अकाउंट बताते हैं वो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट द कंपनी इज़ फॉलोइंग. So there is a need to change that or you can say we need to find out the correct profit of the company. तो ये बुक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल प्रोविजंस में ही हम कंपनी की बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इनकम जो है अननेसेसरी क्रेडिट साइड में दिखा रखी है और कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है कंपनी के, तो वो जो है हमको डिडक्ट करने हैं. सो फर्स्ट अमाउंट दैट नीड्स टू बी एडेड बैक इज़ द एक्सेस डेप्रिसिएशन. एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे है? देखिए, जो टोटल डेप्रिसिएशन कंपनी क्लेम कर रही है that is 6,16,000 and 2,70,000, राइट. नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन. लेकिन कंपनी को जो डेप्रिसिएशन है एज पर सेक्शन 32 जो कैलकुलेट किया है फॉर टैक्स पर्पसेस, ये कंपनी को क्लेम जो है दैट इज़ ऑफ ओनली 5,36,000. तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है जो कंपनी ने अननेसेसरी क्लेम कर रखा है, एक्सपेंस में दिखा रखा है, सो दैट विल बी एडेड बैक. तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,16,000 प्लस 2,70,000 माइनस 5,36,000. तो ये अमाउंट जो आता है दैट इज़ 3,50,000. तो ये अमाउंट ऐड बैक हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सैलरी एंड वेजेस बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस है. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स दैट विल बी एडेड बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. तो 10,000 एडेड बैक. देन कस्टम्स ड्यूटी नॉट पेड येट. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बाद इनकम टैक्स, अगेन येस इट विल बी एडेड बैक. And the amount of income tax is 3,50,000. Then next is outstanding customs duty. तो customs duty क्योंकि outstanding है, that's why it will be added back. Otherwise in accounting जितना भी outstanding amount होता है तो हम उसको expense मान के चलते हैं, but not from taxation point of view. So 17,500. Then proposed dividend, again it is not an expense, so it will be added, and the amount is 60,000. So the total becomes 22,44,000. इसमें से हम कुछ अमाउंट डिडक्ट भी करेंगे बिकॉज दे आर नॉट द इनकम ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, ये जितना भी अमाउंट है ये वापस से ऐड बैक होगा. So amount withdrawn from general reserve 2 lakh rupees and amount withdrawn from revaluation reserve 1,50,000. So this will be added back. This becomes 3,50,000. इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है जो कि unnecessary दिखाई हो. So this becomes, इसको डिडक्ट कर देंगे इसमें से, this becomes 18,94,000. सो दिस इज़ द बिज़नेस इनकम. ये एक्चुअल अब बिज़नेस इनकम है. तो जो कंपनी ने प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा था दैट वाज नॉट द रियल प्रॉफिट. ये है हमारा रियल प्रॉफिट. अब इसमें से जो है इट सेज कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 14,80,000 फॉर टैक्सेशन पर्पस. तो ये जो है हम इसको सेट ऑफ कर देंगे इधर से 14,80,000. दिस इज़ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस. तो अब जो अमाउंट बच गया है अनएब्जॉर्ब्ड लॉस को करके, दिस बिकम्स 4,14,000.
इसमें जो है हम हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 60,000. So this will be gross total income and gross total income is 4,74,000. तो जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है उसके बाद हम उसमें से डिडक्शंस अलाउ करते हैं। डिडक्शंस देने के बाद जो इनकम आती है दैट इज़ द नेट इनकम। तो यहाँ पर जो कंपनी डिडक्शन क्लेम कर रही है दैट इज़ अंडर सेक्शन 80IB। 80IB में जो है 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था? नेट प्रॉफिट वॉज 4,14,000। तो 4,14,000 का 30% जो है दैट अमाउंट बिकम्स 1,24,200. सो दिस डिडक्शन इज़ क्लेम्ड। ये डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो इनकम आ जाएगी दैट विल बी द नेट इनकम। 3,49,800 इज़ द नेट इनकम ऑफ द कंपनी। इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। सो दिस इज़ द नेट इनकम। अब इस नेट इनकम पे जो है हम टैक्स प्रोविजंस लगाकर जो है टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनकम हेयर। द वन इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 60,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है दे आर टैक्स्ड एट 20%. और जो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम बिकॉज इट इज़ लेस देन 400 crores, सो द टैक्स विल बी एट द रेट 25%. एंड दिस इज़ द अमाउंट इज़ 2,89,800. 3,49,800 में से 60,000 लेस कर देंगे तो 2,89,800 जो कि हमारी बिजनेस इनकम है वो आ जाएगी। तो अब ये टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। 20% 60,000 का दिस बिकम्स 12,000 एंड 2,89,800 एट द रेट 25% दिस अमाउंट बिकम्स 72,450. तो ये टोटल टैक्स हो जाएगा हमारा 84,450. अब इस अमाउंट पे वी हैव टू कैलकुलेट सरचार्ज, बट बिकॉज द इनकम इज़ लेस देन 1 crore, सो द सरचार्ज इज़ नील. नाउ द अनदर, तो सरचार्ज नील है तो नथिंग विल बी एडेड. सरचार्ज इज़ नील. वी विल हैव टू ऐड द सेस एट द रेट 4%. तो 84,450 पे 4% से सेस निकालेंगे तो सेस आ जाता है 3,370 और इसको ऐड करेंगे दिस बिकम्स 87,828. सो दिस इज़ द टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. Now we have to calculate tax liability as per MAT provisions. MAT provisions में tax liability compute करने के लिए we will have to calculate book profit. तो book profit कैसे calculate होगा? जो net profit given है P&L अकाउंट में, net profit कितना दे रखा है? 14,56,500. तो इसमें certain things will be added back and there will be certain amount which will be deducted. Now see what are the things that needs to be added back. The first thing we add is depreciation. तो depreciation का total amount जो है depreciation का that will be added. Total is 6,16,000 plus 2,70,000. So this becomes 8,86,000. So this will be added. Then income tax. मैंने आपको बताया कि जो भी टैक्स है, इनकम टैक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है या डिविडेंड टैक्स है, सिर्फ यही टैक्स ऐड बैक होते हैं, बाकी और कोई टैक्स इसमें ऐड बैक नहीं होगा.
तो इनकम टैक्स का अमाउंट है 3,50,000, दिस विल बी एडेड. देन अनदर इज proposed dividend. यानी कस्टम्स ड्यूटी जो है दे आर नॉट टू बी एडेड बैक वाइल वी आर कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट. तो proposed dividend is 60,000, right? So these amount will be added back. सिर्फ depreciation, tax and dividend. यहाँ पर किसी तरह का प्रोविजंस मेंशन नहीं है, तो प्रोविजंस होते तो वो भी हम इसमें ऐड बैक कर देते. Now what are the amount which will be deducted? जो अननेसेसरी के अमाउंट विड्रॉ कर रखे हैं जनरल रिजर्व से, तो अमाउंट से जो विड्रॉ किया हुआ है दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व, तो दैट इज़ 2 लाख, दैट विल बी डिडक्टेड. देन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन. देखिए दो अमाउंट यहाँ पे दे रखे थे फ्रॉम अकाउंटिंग पर्पजेज. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच वॉज 4 लाख एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन विच इज़ 70,000. तो इन दोनों में से जो भी लेस है, तो कौन सा लेस है? अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जो है विच इज़ 70,000, तो ये डिडक्ट हो जाएगा इसमें से. ठीक है, 4 लाख नहीं होगा क्योंकि 4 लाख एक हायर अमाउंट है, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कम है, तो -70,000 किया जाएगा. द नेक्स्ट विल बी डेप्रीसिएशन. यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन था ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन है. दिस इज़ डेप्रीसिएशन बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट. तो ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन वापस से हम डिडक्ट कर देते हैं. तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है 6,16,000. द नेक्स्ट इज अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व. अब इसमें हमको ये ध्यान रखना होता है दैट इट शुड नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन. तो हमारा जो डेप्रीसिएशन बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन है उसका अमाउंट है 2,70,000 और अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं रिजर्व में से दैट इज़ 1,50,000. तो विच एवर इज़ लेस, विच एवर दिस इज़ लेस, तो दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड. तो इतने अमाउंट की हमको डिडक्शन यहाँ पे करके दिखानी है. तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ये डिडक्ट हो जाएगा, तो जो हमारा अमाउंट आएगा दैट इज़ कॉल्ड बुक प्रॉफिट. एंड दिस बुक प्रॉफिट इज़ 17,16,500. तो ये हमारा बुक प्रॉफिट आ गया. अब इस पे जो है हमको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है. टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए जो रेट है मैट में दैट इज़ 18.5%. अब इससे 18.5% से हम इस पे टैक्स निकालेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 3,17,552.5. ओके, सरचार्ज इस पे नील है बिकॉज द इनकम इज़ लेस देन 1 करोड़. तो सिर्फ और सिर्फ सेस कैलकुलेट होगा इस पे 4% से. तो इस अमाउंट पे 4% से सेस कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाता है 12,702.1. These two figures will be added to calculate the tax liability under MAT and the amount is 3,30,254.6 और इसको हम 55 भी लिख सकते हैं. तो अब इन दो फिगर्स को हम कंपेयर करेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली. दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है, हायर अमाउंट इज़ दिस. सो दिस इज़ दी 3,30,255 is the amount that has to be paid in the form of tax. So that is all for today. Thank you.